اب ہم کلچر کی خوبصورتی میں داخل ہوتے ہیں کہ جی ہیل بھری سامی ہمیں آویا، سامی ہماری ہیل اتارو۔ آج کوئی بندہ آپ کا یہ ٹیکسٹ پڑھے گا، اہل ظاہر کوئی بندہ آ کے پڑھے گا، یہ آپ اپنے امام کے سامنے یہ پڑھتے کہ یا مولا ہم اپنے سر پہ پانی کا گھڑا لے کر آئے، ہمارا گھڑا اتار لے؟ تو اس کو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کے واسطے نہیں ہے، چھوڑ دیجئے، آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات۔ جس کے سمجھ میں آ رہی ہے اس کو معلوم ہے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اور اس سوسائٹی کی یہ رسم تھی، اور تاریخ نویس کہتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں اتنی آزادی عورتوں کو تھی کہ عورتیں اپنا ور خود چنا کرتی تھی، عورتیں اپنے شوہر کا انتخاب خود کرتی تھی۔ حالانکہ بہت کنزرویٹو سوسائٹی رہی ہے، مگر اس حوالے سے جو کہتے ہیں کہ اپنا سویم ور جسے کہتے ہیں کہ اپنے ور چننے کا، اپنے شوہر چننے کا ان کو اختیار ہوتا تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے سر پہ پانی کا ایک گھڑا رکھ کے جس کو وہ اپنا شوہر بنانا چاہتی ہے اس کے گھر پہ پہنچ جاتی تھی، اور اگر وہ مرد اسے اپنے عورت کے طور پہ قبول کرتا ہے تو اس کے سر سے وہ گھڑا اتار لیتا تھا، جو اس بات کی دلیل ہوتی تھی کہ اس نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اگر کہتا کہ نہیں واپس چلی جاؤ تو اس کے لیے وہ موت کی باعث بنتی کہ میں ریجیکٹ ہو گئی ہوں سوسائٹی میں، اس لیے وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتی ہوگی کہ مجھے گھڑا لے کر کہاں جانا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جی ہیل بھری سامے امی آویا، سامی ہماری ہیل اتارو، کہ یا مولا اپنے سر پہ میں گھڑا لے کر آ گئی ہوں آپ کے پاس، ابھی آپ اتار لیں، بس آپ کے سامنے آ کے کھڑی ہوں، رکھے پانچی ہیل پھر وہ بخشو دوش ہمارا، ایسا نہ ہو، گھبرا رہے ہیں پیر اپنے دل میں کہ یا مولا ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ واپس چلی جاؤ جہاں سے آئی ہو، یا مولا پھر تو میں کہیں کی بھی نہیں رہوں گی، کہ رکھے پانچی ہیل پھر وہ بخشو دوش ہمارا، یا مولا اگر میں قصوروار ہوں، کمزور ہوں، مجھ میں خامیاں ہیں، مجھ میں کمزوریاں ہیں، تو یا مولا بخش دینا، مگر یہ جو میں بھر کے آپ کے پاس آئی ہوں میری ہیل، یا مولا اس کو آپ واپس نہ کرنا۔ اے جی چھیڑو ناکھی نے سامی ڈھانک جو، اوگن امتنا آئے، ہمیں تو ابڑا آدھین چھوں لجا تماری ہو رائے، کہ یا مولا اپنے آنچل کے ذریعہ، کیونکہ عاجزی اور گریازاری میں پیر تو اپنے آپ کو سبمٹ کر چکے ہوتے ہیں، اپنی کمزوری کا آپ دیکھیں جتنا اپنے آپ کو نیچا گرا سکتے تھے، آپ اس میں دیکھیں گے کہ عاجزی اور انکساری کی ایک لمٹ ہے کہ اس سے نیچے آدمی نہیں جا سکتا، اس حد تک چلے گئے جب امام کے سامنے رکھتے ہیں۔ بہت اچھا لیسن ہے کہ آج مرید اپنے آپ کو امام کے سامنے کس طرح پیش کرتا ہے، اور امام کے سامنے اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ روحانی درجات میں، روحانی کمیونیکیشن میں بندہ کتنا عاجز ہوتا ہے۔ یہ جی چھیڑو ناکھی نے سامی ڈھانک جو، اوگن امتنا آئے، یا مولا ہمارے جتنے بھی خامیاں ہیں، اوگن ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، یا مولا آپ اپنے آنچل کے ذریعہ اس کو چھپا دینا، اس کو ڈھانک دینا، ظاہر نہ کرنا۔ ہمیں تو ابڑا آدھین چھو، ہم تو کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آدھین، عاجز، انکسار، جو جھکا ہوا رہتا ہے ہمیشہ۔ یا مولا ہم تو آدھین ہیں، ابڑا ہیں، لجا تمہاری ہو رائے، یا مولا اب چونکہ ہم آپ سے منسوب ہو چکے ہیں، آپ کی عزت ہے، اب ہم آپ کی عزت ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ پھر حسن کبیر جن بار بار استعمال کرتے ہیں کہ یا مولا اگر آپ نے مجھے ٹھکرا دیا تو صرف میں ہی نقصان میں نہیں رہوں گی، آپ بھی نقصان میں رہیں گے، چونکہ اب میں آپ کی عزت بن چکی ہوں، اس لیے بار بار اس بات کا امام کو احساس دلا رہے ہیں۔ اے جی سامی ہوں آسونتی انت جگ تڑی، یا مولا لا تعداد جگوں سے میں آپ کے انتظار میں، آپ کی امید میں ہوں۔ سنو ہو تربھو ور رائے، اے تینوں عوالم کے مالک سنیے۔ جب تربھو ور کہتے ہیں، اس وقت جو دنیا کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ ایک آسمانی مخلوق ہے، ایک زمین میں ہے اور ایک پاتال میں ہے۔ تو سرگ مرت پاتال کہتے ہیں اسے، کہ آسمان کی دنیا، زمین کی دنیا اور زمین کے نیچے کی دنیا۔
तो त्रिभुवर, तीनों दुनियाओं का मालिक, जो जमाने के इमाम को जिस तरह इस एड्रेस में कहा गया कि ऐ तीनों अवालिम के मालिक, आप मेरी विनती को सुने। भर जोबन मारो आवियो, हवे अमे रहशु लजाए, कि या मौला अब भर जवानी मेरी आई है, अब लोगों से बचना पड़ेगा, लोगों से शर्माना पड़ेगा और हमें अपनी शर्म और अपनी हया की हिफाजत करनी पड़ेगी। या मौला इस वक्त मेरी ये कैफियत है। ए जी 4 जुगमा अनंत रूपे हूं फरी, निका तोय न थाय। 4 जुग, करता, त्रेता, द्वापुर और कलयुग, जिस तरह इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जमाने को 4 जुगों में तकसीम किया गया है और हमारा ज्ञान लिटरेचर इस 4 जुग का जो कॉन्सेप्ट है उसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करता है और उन जुगों को समझने से ज्ञान लिटरेचर समझना बहुत आसान हो जाता है। तो फरमाते इस 4 जुगों में बेशुमार रूप लेकर मैं फिरती आई हूं, लेकिन मौला फिर भी मेरा निकाह नहीं हुआ है, फिर भी आपसे मेरी शादी नहीं हुई है। निकाह पढ़ो मारा नाथ जी, महर करो अलीवर राय। ए मेरे मौला, ए मेरे मालिक, ए मेरे नाथ, महर करो अलीवर राय। ए मौला मुश्किल कुशा मुर्तजाली, कौल देने वाले, कौल पूरा करने वाले, आप महर करें, मेहरबानी करें और रहम करें। ए जी सामी अमे एकली केतलीक रहूं, दिन दुहाग माहे जाए। या मौला अब मैं अकेली कब तक रह सकती हूं। बिल्कुल वही कैफियत है जो जाहिर में कोई औरत किसी मर्द से मंसूब हो चुकी हो और सुहाग के इंतजार में हो, तो फरमाते बस इसी इंतजार में मैं अब अकेली आपसे जुदा कब तक रह सकती हूं, दिन दुहाग माहे जाए। दुहाग की एक तशरीह ये करते हैं कि जब कोई औरत किसी मर्द से मंसूब हो जाए, उस वक्त से लेकर शादी तक, शादी जो सुहाग होता है उस दरमियान का जो वक्त होता है, या अपने सुहाग से जो जुदाई का वक्त होता है, उसे दुहाग कहते हैं कि दिन दुहाग माए जाए। ये मेरा टाइम जो है फिराक में जा रहा है, आग में वक्त हमारा गुजर रहा है पूरा आपकी जुदाई में। दुहाग टाड़ी ने सामी सुहाग करो कि या मौला अब इस जुदाई का, फिराक का, दुहाग का वक्त खत्म करें और या मौला आप इसको सुहाग में बदल दें, यानी ये कि आप मुझे अपना ले। लजा राखो 14 भमण ना राय, ए 14 अवालिम के मालिक मेरी इज्जत रख ले। एक लिहाज से 14 अवालिम, 14 दुनियाओं का जिक्र गिनानों में आया है और फरमाते हैं कि 14 दुनियाओं और 14 अवालिम के मालिक आप मेरी इज्जत रख ले। और ये 7 जमीन और 7 पाताल का भी जो एक तस्वुर है, 7 आसमान और 7 जमीन का जो तस्वुर है, वो जो 14 की फिगर बनता है, उसमें 14 भवन का राय इस्तेमाल होता है। ए जी मात तात बेनी बंधवा नथी राखती कोई। इमाम से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि या मौला मेरा फैमिली प्रॉब्लम कोई नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, बिल्कुल अकेली हूं। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए कि बीच में कोई आने वाला नहीं है मेरे। कि ए जी माँ तात बेनी बंधवा नथी राखती कोई, माँ बाप बहन भाई, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, मेरे कोई है ही नहीं, मैंने सबको छोड़ चुका, मेरे कोई भी नहीं है, मैं इनसे अलग हूं। शरण तुम्हारे आवी हूं रही, लजा तुम्हारी हो रहा है। या मौला मैंने अपने आप को आपके सुपुर्द कर दिया है, आपके शरण में, आपकी पनाह में मैं आ चुकी हूं और मेरी इज्जत रखना या मौला अब आपके हाथ में है। ए जी सामी लाज हमारी जो जाए से, तो खोट बेस से तमने। कि या मौला अगर मेरी इज्जत चली गई, ये बार बार इस खतरे का इजहार करते हैं, आगे भी इसका जिक्र करते हैं कि कलयुग का जमाना बहुत बुरा है जिसमें हमें अपनी इज्जत आबरू संभालनी पड़ती है। कि या मौला आप जल्दी करें, अगर कहीं मेरी लाज चली गई, मेरी इज्जत चली गई, तो या मौला आप ही को नुकसान होगा, क्योंकि हम तो अपने आप को आपसे मंसूब कर चुके हैं और अब हमारी इज्जत आपकी इज्जत बन चुकी है। जारे मिजलिस मिला वो करसो, तारे अड़ुखरी म करसो हमने। कि या मौला जब आप मजलिस बनाए जहां बहुत से लोग बैठे हों,
आपके बहुत प्यार करने वाले, चाहने वाले बैठे हो। या मौला, ऐसी महफिल के अंदर जब हम आपके सामने आए तो आप अपना मुंह नहीं फेर लेना, हमें रुस्वा नहीं करना, हमें रिजेक्ट न करना, हमें उस वक्त कोई ऐब नहीं निकालना। या मौला, हम अपने आप को आपके सुपर्द कर चुके हैं, ऐसा करेंगे तो हम आपकी इज्जत है या मौला, आपको इससे नुकसान होगा। ये जी त्यारे हमें त्या पुकारसू, और इसको हम पहले पाठ के पिछले 2 लाइन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे कि जारे मजलिस मिलाओ करसो त्यारे अड़ुखरी मकरसो। हमने त्यारे हमें त्या पुकारसो, उस महफिल, उस मजलिस में जहां हम होंगे आपके पास, और जारे तख्ते बेसो हो रहा, जबकि आप तख्ते विराजमान होंगे, सारा जमाना सारा जहां आपके सामने होगा। या मौला, उस वक्त हम आपको आवाज देंगे, उस वक्त हम आपको बुलाएंगे कि हम आपके इंतजार में यहां हैं। आज उणियात की कर जालियात केम मेलो आज। या मौला, वहां हम आपको बुलाएंगे तो वहां अरुखड़ी मत करना हमारे साथ। उस वक्त ये न कहना कि तुम कौन हो, मैंने तुम्हें नहीं देखा है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। उस वक्त हमें कबूल करने या हमें पहचानने से इनकार न करना या मौला। हम उस भर मजलिस में, उस भर सभा में हम आपको आवाज देंगे कि हम आपकी दासी है। आज उणियात थी कर जालिया, उस जमाने से, इब्तदाए आफरीनश से जो आपने हमारा हाथ थामा है, अलस्तु बि रब्बिकुम का जो हमारा और आपका वादा है, वो हाथ आज कैसे छोड़ रहे हैं आप? वो आज मत छोड़िए, उसे आप थामे रखिए। ते केम मेलो आज, उस वक्त से जो आपका हाथ थामा है, या आपने हमारा हाथ थामा है, या मौला, आज वो हाथ आप न छोड़ें। सामी अवगुण अमतणा मजुओ, हमें छैये गुनेगार। या मौला, हमारी खामियों को न देखें। ये खामियां वाकई पीर के अंदर थी, जो पीर बार बार बयान कर रहे हैं कि मुझ में इतनी खामियां हैं, मैं इतना गुनहगार हूं, जिनकी हम पैरवी कर रहे हैं, जो हमारे लिए मशअल राह है। इन पीरों का गिनान सुनकर, पढ़कर हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं, या मौला, अवगुण अमतणा मजुओ, हमारे कसूर, हमारी बुराइयां, खामियां न देखें, हमें चाहिए गुनेगार। हम तो हैं ही गुनेगार। जब उनका ये हाल था तो हमारा क्या है? हम किस लेवल या किस खाते में आते हैं? और अगर आज हम अपने अंदर कोई बड़ाई, कोई घमंड या अपना सर ऊंचा रखने की बात करते हैं, तो कम से कम पीरों की इस तालीमात से थोड़ा सा लेसन ले और अपने दिल को नरम करे कि जो इमाम से जितना करीब रहा है, जो इमाम से इतना करीब रहा है, वो कहता है कि या मौला, मेरे ऐबों को ढांक लीजिए, ऐबों के सामने मत देखिए, मैं तो हूं ही गुनहगार, मुझ में तो कमजोरियां भरी हुई हैं। तो अगर एक गुनहगार, खताकार बंदा होता है, मौला के सामने उसकी हाजिरी, मौला के दर पे उसकी हाजिरी कैसी होती है, उसमें कैसी आजिजी, कैसी इंकसारी हो। छेड़ो नाखी ने सामी ढाक जो, हूं छऊं बाढ़ कुंवार। या मौला, जितनी भी मेरी खामियां हैं उसके सामने मत देखना, बस आपके आंचल से मेरे गुनाहों को ढांप देना। मैं छोटी सी एक कुंवारी सी बच्ची हूं, आपके पास आई हूं, मैं कोई अपना हक आपसे नहीं मांग रही हूं, बस आजिजी और गिरियाजारी में आपके सामने आई हूं। ये जी सामी, माँ बाप हमने जन्मिया ने सौंपिया तुम्हारे शरण। माँ बाप का काम था, उन्होंने जन्म दिया हमको, फिर तो आपके हवाले कर दिया है। उन्होंने हमें बड़ा किया, जवान किया, दुनिया बहाने जो भी उनका फर्ज था उन्होंने किया। माँ बाप हमने जन्मिया, जन्म देना माँ बाप का काम था, उन्होंने पैदा किया। सौंपिया तुम्हारे शरण, उन्होंने आपके हवाले कर दिए है या मौला। अब हम आपके पास हैं, हवे हाथ जालियानी लाज आण जो, तारो तमे तारणहार। आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है या मौला, उसकी इज्जत महफूज रखना, उसकी इज्जत बरकरार रखना, और हमें तारो तमे तारणहार, इस दुनिया से हमें नजात देकर ले जाएं। ये जी स्वामी, नारियों तमारियों अति घणियों, मुझ सरीखी लाखों ही लाख। या मौला, आपकी तो ऐसी कितनी दासियां हैं, मैं कोई एक अपनी खास हक थोड़ी मांग रही हूं। नारियों तमारियों अर्शनियों आगे आता है। या मौला, आपकी तो बहुत सी ऐसी रूहें
ऐसी रूहानियां, ऐसी कनीजें, ऐसी दासियां, मुझ सरीखी लाखों ही लाख, मुझ जैसी तो लाखों आपके मुरीद हैं, लाखों आपकी आजिजी करने वाले हैं। तमे छो अलख निरंजन, या मौला आप वो हैं जिनको समझा नहीं जा सकता, जिनको देखा नहीं जा सकता। अमे छैये धूड़ी खाक, क्या कंपैरिजन है, और वो रूहानी मिलाप करा रहे हैं। जिससे रूहानी मिलाप करा रहे हैं उनका मकाम का तारुफ क्या करा रहे कि तमे छो अलख निरंजन, आप उस सिरे पे हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, ना काबिल फहम ना काबिल दीद। हमें चाहिए धूड़ी खाक, हम इस सिरे में हैं कि जिसके नीचे इंसान जा नहीं सकता, रास्ते की धूल के बराबर है, इसलिए बड़े आजिज हैं। इसलिए बहुत आजिज और गिरियाउजारी के साथ आपसे बात करते हैं। ए जी सामी हाथ जालियानी लाज आण जो अलख लखाओ तमे प्रेम नो पार। मौला हमारे हाथ पकड़ने की इज्जत आप रख लेना, अपनी मोहब्बत को आप जाहिर करे। ए ना काबिल फहम हस्ती अलख लखाओ तमे प्रेम नो पार। ए वो हस्ती जो समझ में नहीं आने वाली है, आप मोहब्बत की इंतहा को जाहिर करें, आप अपनी मोहब्बत मेरे वास्ते जाहिर करें। प्रीत करीने अमने परण जो अमे छैये गुनेगार। आप अपनी मोहब्बत का इजहार करके अपनी मोहब्बत के जरिया हमसे शादी करें, यानी हमें अपना लें, हम गुनेगार हैं आपके सामने। ए जी भर जोबन मारो आवियो, सामी एकलो नहीं रहवाए कि या मौला मैं अब रूहानियत की भर जवानी में आ चुकी हूं, अब मुझसे अकेला नहीं रहा जा सकता। बाहर जावानो एब छे निकाह करी पर्ण हो रहा है कि या मौला जमाना खराब है। भर जोबन में जब कोई लड़की आ जाती है उसका बाहर निकलना मसला हो जाता है। तो फरमाते हैं कि बस उसी तशबीह को इस्तेमाल किया है कि अब बाहर जाना मेरे लिए ऐब हो जाता है कि लोग तरह तरह की नजरें मुझ पे डालते हैं, और मुझे इस ऐब से बचा लीजिए। निकाह करी पर्ण हो रहा है कि या मौला आप निकाह करें, मुझसे शादी करें, और शादी इस तरह करे कि सारे जमाने को पता चल जाए, ताकि सबके सामने मेरी इज्जत आबरू महफूज रहे। ए जी जान लेने सामी आओ जो वार म कर सो लगा। रबी शादी फरमाते कि कोई मुझे आपसे चुपके चुपके शादी नहीं करना है, कि जिसका किसी को पता नहीं चले कि मेरी आपके साथ शादी हुई है। बाकायदा जो समाज में उसका रिकॉग्निशन हो, या मौला वो मुझे चाहिए कि जान लेने सामी आओ जो। आपने और जगह भी त्रिभुवन राय की जहां शादी का जिक्र सुना है, यारा जानी शाहजा हे वीर हे कांदा शाह परणे जियो परणे त्रिभुवन राय, के मौला की बारात आने वाली है, और उन बाराती में कौन कौन होंगे उनका भी जिक्र होता है गिनानों में। तो यहां पीर फरमाते हैं कि या मौला बारात लेकर आइए, जान लेने सामी आओ जो, वार म कर सो लगार। या मौला टाइम नहीं लगाना, देर मत करना, अब बहुत देर हो चुकी है। मेहर करी ने सामी आओ जो, हूं छऊं तुम्हारे नार। या मौला मेहरबानी करके आप आइएगा, मैं आपकी औरत हूं, मैं आपकी दासी हूं, मैं आपकी कनीज हूं, मैं आपकी रूह का हिस्से के तौर पे हूं। ए जी सामी तुम्हारे नामे तो हूं चढ़ी चढ़ी ते चौक बाजार। या मौला आपका और मेरा ये जो रूहानी रिश्ता है, अब इसका जमाने को इल्म है, सारे बाजार लोगों को पता है कि मैं आपके नाम से मंसूब हो चुकी हूं, अब इसको छुपाया नहीं जा सकता। स्वामी तुम्हारे नामे तो हूं चढ़ी, या मौला मैं आपके नाम से मंसूब हो चुकी हूं, सरेआम मंसूब हो चुकी हूं, और इस रिश्ते को पाए तकमील तक पहुंचाना या मौला ये आपका काम है। ज्यां कलब जुगना जीव मल से करोड़ा करोड़ अपार, के चौक बाजार उस जगह पे जहां करोड़ों जीव करोड़ों रूहें जमा होंगी, या मौला उस चौक बाजार के अंदर मैं आपके नाम से मंसूब हो चुकी हूं। ला तादाद रूहों के सामने आपका और मेरा ये रिश्ता तय हुआ है। और उस मंजर के हवाले से फरमाते कि जी अनंत जीव जुगना मल से तेमा तमे आओ जो आप। या मौला जब वो जान लेकर आएंगे और वो जो बड़ा शादी का
शामियाना बंधेगा, जब चौक में सब जमा होंगे, अनंत जुगना जीव मर से। और उसमें मेरी ख्वाहिश क्या है कि ढूंढता ढूंढता सामी आवजो अबड़ा नारी ने पास। या मौला उस ला तादाद करोड़ों रूहानियों के बीच में मैं ये चाहती हूं, या मौला आप ढूंढते ढूंढते मेरे पास आए। आप इन सब लोगों में मुझे ढूंढते हुए जहां मैं बैठी हूं या जहां मेरी जगह है, या मौला इस अबड़ा नारी के पास, इस कमजोर आपकी जो दासी है उसके पास आप आइएगा। ए जी चाली चाली हूं थाकी रही, सामी हवे नहीं रे चलाए। ये जो रूहानी सफर है वो गिनान में पहले सुना, शाह को ढूंढते देखते वीरा, केता झुक गया केता भव गया, या मौला अब थक गई हूं चल चल के। चार जमाना, चार जुग, अनंत करब, जो भी कहिए, उस जमाने से या मौला मेरी रूह का ये सफर जारी है जो आपके तलाश में है, और अब मैं आपसे करीब हूं। या मौला अब मुझसे चला नहीं जाता। चाली चाली हूं थाकी रही, सामी हवे नहीं रे चलाए। अवगुण अमारा सामी तमे मजुओ, सामी हवे नहीं रे रहवाए। या मौला मुझ में जो खामियां हैं, मेरी जो कमजोरियां हैं, या मौला उसको मत देखिए, और अब मुझसे रहा नहीं जाता। अपनी जुदाई की एक कैफियत का बयान जिस तरह गिनानों में और जगह पर भी है कि सामी जल बिना मछली जेम तड़फड़े, तेम नर विनानी नार। या मौला जिस तरह पानी के बगैर मछली का हाल होता है, जिस तरह जल बिना मछली यूं तड़फड़े गिनान के अंदर है, कि हमारी हालत या मौला आपके बगैर, आपके नाम के बगैर ऐसा है जैसे मछली पानी के बगैर है। तो फरमाते हैं कि मौला के बगैर मुरीद का या रूह का ये हाल होता है जैसे मछली का हाल पानी के बगैर होता है। परणवानो सामान सामी लावजो, वार म करसो लगार। या मौला आप शादी के लिए आए और शादी का जो भी सामान है वो साथ लेकर आइए, और शादी का जो सामान का डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो अणतना विवाह, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र दिया, फिर उसको पढ़िएगा, उस पे अमल मत कीजिएगा, क्योंकि इतना सामान आज आप ला नहीं सकेंगे जितना पीर हसन कबीरुद्दीन ने उसमें जिक्र किया है। जितना सामान उन्होंने मांगा है और जितना आया है वो एक तशबीही जबान में है, मगर एक अंदाजा लगाने के लिए कि देखिए क्या क्या मांगा गया और क्या क्या लाया गया है। तो यहां भी कहते हैं कि या मौला शादी का सामान साथ में लेकर आइएगा और देर मत कीजिएगा। सामी पूर्ण परिभ्रम तमे अलख रूपी, जुक्ति सु वखाणु तमारी। कि या मौला आपकी तारीफ क्या करूं, आप नाकाबिल फहम रूप में हर जगह मौजूद हैं। पूर्ण परिभ्रम, हर जगह आप मौजूद है। अलख रूपी, आपका रूप ऐसा है जो नाकाबिल बयान है, नाकाबिल फहम है। अलख भी है और रूपी भी है, जो नाकाबिल फहम है मगर एक फॉर्म में सामने आया है। जुक्ति सु वखाणु तमारी, आपकी हिकमत की या मौला मैं क्या बयान करूं, उसकी मैं क्या तारीफ करूं। तेज स्वरूपी सुंदरी, करोड़ा करोड़ज नारी, आपकी करोड़ों करोड़ आपकी दासियां हैं, आपकी रूहें हैं जो तेज स्वरूपी सुंदरी, जो पुर रोशन है, पुर नूर है, खूबसूरत है, हसीन है। या मौला आपकी मैं क्या तारीफ करूं कि ऐसी करोड़ों रूहें हैं मेरी तरह जो आपके इंतजार में बैठी हैं। ए जी सामी एवियूं नारियों तमारी अर्शनियों, बहुत से रूप अपार के या मौला ऐसी अर्शीन किस्म की, अर्श में रहने वाली आसमानी ऐसी रूहानी मखलूक के या मौला आपकी बहुत ऐसी आसमानी रूहें मौजूद हैं जिनमें बहुत रूप है, जो बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। हमें तो अड़ू खरी अड़ू परी। या मौला मुझ में न कोई रूप है न कोई रंग है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कमजोर खताओं से भरपूर। हमें तो अड़ू खड़ी अड़ू पड़ी, मुझ में कुछ भी नहीं है, न रूप है न रंग है। तेनी लाज राख जो भरतार, या मौला बस इसकी इज्जत रख लेना आप। मैं कोई अपनी रूप और रंगत की वजह से आपकी शफकत और मोहब्बत का दावा नहीं करती, लेकिन बस एक आजिज, आपकी एक बंदी का ये आपके दर पे आजिजी और इनकसारी है।
એ જી સામી તમારે ચરણે ચિત ચોટી રહ્યું बीजा केने रे वड़गू। या मौला मेरी मोहब्बत मेरा ख्याल तो आपकी जात के साथ लगा हुआ है, अब उसको छोड़कर मैं किसी और की तरफ देख नहीं सकती और मैं किसी और का हाथ थाम नहीं सकती। मैं किसी और का हाथ कैसे थामूं? बिरद अमारो छे सामी तमे वरो खण म कर जो रे अलगू। कि हमारा ये फैसला है कि या मौला आप मुझे अपना बनाएं और अपना बनाने के बाद एक पल के लिए भी हमें आप अपने आप से अलग न करें और अपने आप से जुदा न करें। ये जी सामी लाज हमारी तमे राख जो बीजे हाथे केम रे जवाए। या मौला हमारे इज्जत आप रख लीजिएगा। अब आपके नाम से मंसूब हो चुकी हूं तो किसी और के हाथ में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तमारा नाम नो नारियल आवियो बीजो केम जो आए। कि जहां एक तरफ रिश्ते की ये बात हुई कि औरत हेल अपने सर पे लेके जाती है और अगर वो हेल उतार लेता है वो मालिक तो उसकी बात पक्की हो जाती है। और मर्द जब बात भेजता है तो बात के साथ वो एक नारियल के फॉर्म में आता है कि या मौला आपकी तरफ से बुलावा आ गया है, आपके नाम का नारियल आ गया है। गोया रिश्ते के लिए जब मर्द बात भेजता होगा तो नारियल की सूरत में भेजता होगा। कहता या मौला आपके नाम का नारियल आ गया है, यानी आपका पैगाम आ गया है, अब कोई और नारियल देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कि या मौला आपका जो पैगाम है तमारा नाम नो नारियल आवियो बीजो केम जोवाए, अब तो किसी और को देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा ये बंधन बन चुका है और हम आपसे मंसूब हो चुके हैं। ए जी आधीन तईने हूं विनती करूं सामी तमे सांभड़ो करण। या मौला मैं बहुत आजिजी और इनकसारी से ये विनती कर रही हूं कि आप मेरी बातों को अपने कानों से सुने। काइक आधीन पणे बख्श जो, मेहरबान होकर शफकत के साथ मेरे गुनाहों को बख्श देना। सामी तमे अशरण ना शरण। या मौला जिसकी कोई पनाह नहीं है उसकी पनाह आप है। कहते हैं हम तेरे शरणे मौला अली आशा। या मौला हम आपकी पनाह में आए हैं। जिसका कोई पनाह नहीं है या मौला आप अशरण के शरण है, जिसका पनाह नहीं उसके पनाह आप हैं। ये जी सामी अबड़ाते आतुरती घणी। ये जो कमजोर है वो बहुत, आपकी ये दासी आतुर है, बहुत बेचैन है। नैने जरे छे नीर, मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। तम नर ने नारियों घड़ियों मारी जानों ने पीर। या मौला आपकी तो दासियां बहुत है, आपकी तो मुरीद बहुत है, मगर जो दर्द मुझे है, जो शिकवा मुझे है, जो जुदाई का फिराक मैं महसूस कर रही हूं, या मौला आप उसको जानने की कोशिश करें। सामी कहीं कहीं हूं केटली कहूं सामी तमे छो रंगी राय। या मौला अब मैं कितना आपको कहूं, आप रंगी राय हैं, यानी मर्जी के मालिक हैं। आपको जो पसंद आता है सो आप करते हैं। मैं और कितनी विनती करूं आपको कि आप मर्जी के मालिक हैं। मेहर करीने सामी मुने मल जो, तो मारी रह से लजाए। या मौला मेहरबानी करके मुझे मिलिए तो मेरी इज्जत आबरू महफूज रह जाएगी। ए जी अवगुण हमारा तमे मनमा मत हरो। कहते या मौला मेरी जो खामियां हैं उसको आप अपने दिल पर मत लाइए। हूं छऊं अबड़ा आधीन नार, मैं कमजोर आजिज दासी हूं आपकी। जोबनवंती हूं थई हूं छऊं बाढ़ कुआर। अब मैं भर जोबन में आ चुकी हूं और मैं आपकी एक अदनासी कमसिनसी दासी हूं। फिर अपने तरफ से शादी का जो भी सामान लाने का जिक्र है उसका बयान करते हैं। ए जी अंबर आभूषण जे जो ये ते सामी सर्वे हूं लाऊं। कि या मौला आपको कपड़े जो चाहिए और जेवरात जो चाहिए, शादी में लड़कियां अपने साथ ले आती है। अंबर आभूषण, कपड़ों की जो जरूरत है और जेवरात की जो जरूरत है, या मौला आप जो कहें मैं सब अपने साथ ले आऊं। ए तो हमारो सामी हमने मले तो शणगार सौंपती आऊं। अगर मेरा मौला मुझे मिलता है और मुझे अपनाता है तो या मौला आप कहें ऐसे जीनत से, ऐसे शणगार के साथ अपने आप को मैं सजा के आपके पास ले आऊं। ए जी सामी हूं आत उणियात थे विनवू। या मौला
इब्तदाए आफरीनश से मेरी गिरियावजारी चल रही है। जंपू सांस सांस में, एक एक सांस में आपको याद कर रही हूं। रोमे रोमे सामी तमे रमीज रहिया, तो पाप हमारा सर्वे थाय नाश। कि या मौला, मेरे एक एक रुए रुए में आप बस रहे हैं, मेरे एक एक बाल में या मौला आप इस तरह बस रहे हैं कि इससे मेरे सारे गुनाह, मेरी सारी कमजोरियां खत्म हो जाती हैं।